Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. So today is 4th December and it is batch A1, है ना? Yes. Batch A1 4th year MBBS writer. So today we will be discussing the history take, and the most important thing which I told you that in any specialty the most important thing is you should know that what are the possible presenting complaints with which a patient can come, like in medicine, surgery, ENT, and eye. So regarding ophthalmology or eye, uh, let's do the brainstorming, and I would ask you people to just tell me what you think that what are the possible complaints जो आपके ज़हन में आती हैं जिसके साथ पेशेंट आ सकता हो पड़े में, ठीक है ना? तो एनीथिंग रेडनेस हो सकती है. ओके, पेशेंट कैन कम विद रेड आई, ठीक है? इट कैन बी पेनफुल रेड आई, इट कैन बी पेनलेस रेड आई. पेनफुल रेड आई की जो मैं थोड़ी साथ बिल्कुल ब्रीफली कॉजेज बताऊँगा. पेनफुल रेड आई आमतौर पर होती है जैसे स्क्लेराइटिस हो गया, ठीक है, सीवियर कंजक्टिवाइटिस है, यूवियाइटिस है, जो इंट्राऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन है यूवियाइटिस, एंड द पेनलेस रेड आई यूजुअली सब कंजक्टिवल हैमरेज. ठीक हो गया? दिस इज वन ऑफ द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स. एनीथिंग एल्स? Decreased vision also. Yes, in eye, the most important complaint with patient comes is decrease in the vision. It includes many things like decrease in the far vision, decrease in the near vision, blurring of the vision, difficulty in focusing, and all these symptoms पेशेंट के डिपेंड करता है उसके बैकग्राउंड पे, उसकी लैंग्वेज पे, लेकिन अंडर दिस हेडिंग ऑफ डिक्रीज विजन ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है? जब आप आगे इसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लेंगे तो फिर आप इंक्वायर कर सकते हैं कि ये क्या पेशेंट का मकसद क्या कहने का. लेकिन डिक्रीज विजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ज़रा आई में वट आवर मेन एम इज टू रिस्टोर द विजन ऑफ द पेशेंट regardless of the diseases. The single most outcome is to have a good vision, and all the other diseases which we treat are to prevent the decreased vision or blindness. And any other cause? डिक्रीज विजन की सर. नहीं, any other presenting complaint? एक बाईलेटरल है बोथ आइज की. Huh? बोथ आइज की बाईलेटरल कैटरैक्ट्स हो सकती है, ग्लाकोमा. Okay, these are the diagnoses. इसका भी जो है रिजल्ट वो डिक्रीज विजन ही होगा. अच्छा, आप बताएं. सर इंक्रीज लैक्रिमेशन हो सकती है कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं. इंक्रीज वाटरी. वाटरी ठीक है, मैं आपका आई के लेक्चर लिए थे, उसमें मैंने लैक्रिमेशन और एपिफोरा में डिफरेंस बताया था, याद है? चले, इंक्रीज वाटरी आई, patient can come with a complaint of watery eye. Now, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ. The difference between the lacrimation and epiphora is that lacrimation is because of increased production of the tears. For example, in cases like conjunctivitis or corneal ulcer, in which trigeminal nerve is stimulated. Epiphora is because of obstruction of the drainage, and it is because of some problem in the lacrimal apparatus like nasolacrimal duct obstruction, chronic dactylocystitis. याद है लेक्चर ना? तो उसकी रिवीजन ये आपकी एपिफोरा की कॉजेज है और लैक्रिमेशन और वाटरी आई की कॉजेज है. तो लैक्रिमेशन और एपिफोरा का डिफरेंस हो गया. और भी कंप्लेन हो सकती है आई में. जस्ट थिंक, पेन भी तो हो सकता पेन हो सकती है. पेन किस जगह स्पेसिफिक करें ना, पेन आई किस जगह? So, या प्रेशर या पेन जैसे मतलब माइग्रेन वगैरह में भी होता है ना. मिग्रेन को छोड़े ना, इट इज नॉट रिलेटेड टू आई. स्पेसिफिकली आई में किस जगह पर पेन? आईलिड में, आई बॉल में, आई बॉल में
Actually, patient can experience pain in the eyeball. It has many causes. For example, glaucoma is usually a symptomless disease. Intraocular pressure is not usually accompanied by pain. Primary open angle glaucoma. लेकिन अगर एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है जिसमें acute pressure rise होता है, that can be painful, severely painful. Uveitis or intraocular inflammation can be painful. Scleritis can be painful. So pain is another presenting complaint. Anything else? ड्राइनेस हो सकती है आगे, पेशेंट क्या कहेगा आके? ये तो डायग्नोसिस है ना, ड्राइनेस, फिर जलन होगी. जलन, बर्निंग. If the eye is dry, what is dry eye? हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था ड्राई आई में लेक्चर में? एक xerostomia. शोगरेन सिंड्रोम पढ़ो उसमें. शोगरेन सिंड्रोम, तो उसके अंदर कॉज थी. मेन टॉपिक क्या था लेक्चर में? थे आप लोग? केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का, ड्राई आईज. तो इसमें आगे मुख्तलिफ कॉजेज हैं जिसमें ये प्योर केसीएस हो सकता है जिसमें कोई सेकेंडरी डिजीज ना हो, प्राइमरी शॉगरेन सिंड्रोम हो सकता है, सेकेंडरी शॉगरेन सिंड्रोम, बाकी चीज़ें और भी हो सकती हैं. लेकिन इसमें टीयर्स प्रोडक्शन कम हो जाती है जो लैक्रिमल ग्लैंड से, और accessory lacrimal glands which are present in the conjunctiva. So, and other parts of the tear film, like I told you, lipid layer होता है, aqueous होता है, mucin layer होता है. These, any one of it is disrupted, the tear film is affected, and the result is dry eye. And dry eye presents in the form of burning, or मोस्ट कॉमनली फोटोफोबिया. फोटोफोबिया भी एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन है. पेशेंट कहता है आगे जी मुझे लाइट बर्दाश्त नहीं होती. तो जब कॉर्नियल सरफेस पे वाटर सही तरह नहीं होगा तो ये भी होगा. एनीथिंग एल्स? डबल विजन, डिप्लोपिया. डबल विजन, पेशेंट आगे क्या देता है जी मुझे दो नज़र आते हैं. इसकी यूजुअल कॉज होती है स्क्विंट. आई एम trying to be as brief as possible, not going into detail. Misalignment of the eyes is defined as squint, double vision. Anything else? फॉरेन बॉडी यानी कोई चीज जा सकती है आँख में. Patient क्या कहेगा? इरिटेशन. Patient ये कहेगा मुझे लगता है आँख में कुछ गया हुआ है. Foreign body sensation. और उसमें आमतौर पे जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास who do the things like grinding of the iron, जिसे उर्दू में कहते हैं खरात का काम करते हैं, वो कोई चीज़ उड़ के पड़ती है इस तरह की, तो उसमें फॉरेन बॉडी ज़्यादा पड़ी है तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी. अगर ट्रीटमेंट इज टू टेक इट आउट ऑन स्ट्रिक्ट लेग यूजुअली वी टेक इट आउट. और कोई चीज़, और कुछ? सर पेशेंट इस तरह से भी आ सकता है कि वो कहे कि मेरी एक आंख तो ठीक है लेकिन जो मेरी दूसरी आंख है वो ना थोड़ी खुलती नहीं है सही. मतलब जैसे ड्रूपिंग होती है अपर आईलिड की टॉसिस. ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड, अपर आईलिड, ये पेशेंट अपनी जुबान में कहेगा तो आप इसको टॉसिस कहेंगे. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है. अच्छा, आपके साथ सर कोई ट्रॉमा हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से. पेशेंट के कहेगा हिस्ट्री में पेशेंट पेन है, पेन हो गया. अच्छा, आपके साथ सर विजन प्रॉब्लम ही हो सकता है. हो गया, ब्लरिंग हो गया, उसमें सब आ जाता है. आप सर पेन वगैरह. सर लेजियन या कोई दाना. ये डायग्नोसिस है सर जी. सर वो ये भी तो कह सकता है कि मुझे ना यहाँ पे कुछ जैसे वो कहते नहीं है कि कुछ स्वेलिंग टाइप ठीक होती है. पेशेंट कैन से कि देयर इज समथिंग सम लीजन ऑफ प्रोटीन और सम स्वेलिंग. ये पेशेंट की जुबान में. इट कैन बी क्लेजियन, इट कैन बी डर्मोइड सिस्ट, इट कैन बी एनी ट्यूमर. ठीक है, जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्विमस सेल कार्सिनोमा, याद है कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पड़े थे, वायरल वॉट, थिंग्स लाइक दैट. एनीथिंग एल्स? दोबारा सर उसके अलावा हो सकता है कि उसे वो कहे कि मुझे दाने दाने दिखते, मतलब वो
फ्लोटर्स पेशेंट कहता है कि मुझे ब्लैक डॉट्स नजर आते हैं दीज आर विट्रस ओपेसिटीज यूजुअली दे आर हार्मलेस एंड नॉर्मल एंड फिजियोलॉजिकल विद एज द जेली लाइक स्ट्रक्चर द विट्रस इन द posterior part of the eye starts melting and it liquefies and when it liquefies it breaks down and it attains various shapes. When the light goes into the eye and it falls on the vitreous, the floaters which are of various shapes like dots or lines, you see the shadow of those opacities which are casted on the retina. And patient says these are floaters. They are harmless usually, and but very annoying. पेशेंट्स ये कहते हैं कि इसको इग्नोर करें ताकि ब्रेन इसको आस्ता आस्ता इग्नोर करने की कोशिश करे. अगर आप इसको फोकस करेंगे जितना ओवर करेंगे उतना ज़्यादा नजर आता है. इट कैन बी पैथोलॉजिकल ऑल्सो लाइक इन पोस्टीरियर यूवेटस दैट इज कोरिडाइटिस और intermediate uveitis like inflammation of the ciliary body. तो पैथोलॉजिकल भी हो सकता है. यस वेरी गुड. फ्लोटर्स जो काले धब्बे यूजुअली आसमान की तरफ देखें तो आपको ज़्यादा नज़र आते हैं. आप लोग भी ट्राई करें, आप अक्सर को नज़र आ जाएंगे. जो ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर होते हैं उनको ज़्यादा नज़र आते हैं. और कोई सर लोअर लेट के जो हेयर्स होते हैं इनवर्ड ठीक है. पेशेंट कह सकता है कि मेरे बाल अंदर की तरफ बढ़े लोअर या अपर आईलिड के. तो डायग्नोसिस क्या है? एंट्रोपियन भी हो सकता है और नहीं एक्ट्रोपियन में तो बाहर होगा. एंट्रोपियन हो सकता है और मोर eyelashes की position उसे क्या बोलते हैं? हाँ यस वेरी गुड. ट्रिकियसिस ट्रेकियसिस ठीक है ना. ट्रेकियसिस भी हो सकता है. एनीथिंग एल्स? सर एक और भी आ सकता है कि जैसे उसकी जो आई लैशेज हैं वो कहेगा कि इसके ऊपर ना सफेद सफेद जी. कुछ डैंड्रफ लाइक यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आंखों में खुश्की सी है. तो सर दिलशाद साहब याद कर. अच्छा ओके. आंखों में खुश्की सी है तो इट इज यूजुअली ब्लेफाइटिस. डैंड्रफ है तो ये हमने पढ़ा था सिबोरिक जो सी है उसको डेंड्राइटिस बोलते हैं. अच्छा मैं थोड़ा सा इसको जो कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं उसमें आपको बता दें, समराइज कर देता हूँ. ऑलमोस्ट ये कंप्लेंट्स हैं. आपने इस तरह तो शायद पहले नहीं पढ़ा था ना तफसील से. तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से आगे आप व्हेन यू विल गो फॉरवर्ड देन यू विल गो टू हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, देन पास्ट हिस्ट्री, देन ट्रीटमेंट हिस्ट्री, द you know the rest of the format. But the most important thing is to know what are the possible presenting complaints which you have learned today. There are a couple of more causes like patient can say that he sees flashes of light जैसे बिजली चमक रही है. It can be normal or it can be pathological. It happens in pathological cases in posterior vitreous detachment when the vitreous is detached and it pulls the retina, and when retina is stimulated it gives a sensation of lightening. And physiologically जब डार्क रूम में आप आंखें तेजी से मूव करें यू कैन फील, उसको फोटोप्सिया बोलते हैं. फोटोप्सिया इज दिस फीलिंग ऑफ सेंसेशन. आप अगर अपनी आंख बंद करके इस तरह करेंगे ना आपको फील भी हो जाएगी क्योंकि यू आर स्टिमुलेटिंग द रेटिना. राइट. थोड़ा सा इसको यहाँ पर टेम्परल साइड पे करें ना तो आपको फील होगा यहाँ पर जैसे बिजली चमक रही है. हुआ ठीक है. क्योंकि ज़रा रेटिना इज फॉर्म टू परसीव लाइट. जिस तरह आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपको लाइटनिंग फील होगी. यहाँ पर आपको टैक्टाइल है, यहाँ पर आपको फीलिंग ऑफ टच महसूस होगी. कानों में अगर ये सेंसेशन होगी तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, आंखों में होगी तो लाइट महसूस होगी. सिमिलरली पेशेंट कैन कम विद सडन लॉस. वो ब्लर विजन में हो गया, एक सडन लॉस ऑफ विजन होता है. जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी की एक्सट्रीम स्टेज, थर्ड स्टेज है जिसमें विट्रस हैमरेज हो जाए, या
ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाए, उसमें सडन लॉस ऑफ विजन हो जाता है, इस रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ सडन लॉस ऑफ विजन। वो भी पेनलेस भी हो सकती है, पेनफुल भी हो सकती है। और आमतौर पे जो ऑप्टिक, फॉर एग्जांपल ऑप्टिक न्यूराइटिस है, वो पेनफुल होती है। हर क्रेनियल नर्व, ये इंपॉर्टेंट चीज टू रिमेंबर, every cranial nerve palsy is usually painful, whether it is accompanied by accompanied by decrease in the vision or not. For example, third nerve palsy, oculomotor, it will not cause the decrease in the vision, but it will cause deviation of the eye towards the lateral side, divergent squint हो जाएगा, क्योंकि थर्ड नर्व पाल्सी होगी तो सिक्स नर्व खींच लेगी आई को। अगर सिक्स नर्व पाल्सी होगी थर्ड नर्व खींच लेगी। यूजुअली बोथ आर पेनफुल बट दे डोंट अफेक्ट द विजन। सो हियर वी क्लोज आवर समराइज्ड पैटर्न और मैनर ऑफ पॉसिबल प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। सर कुछ लोग हैं वो लेंस यूज़ करते हैं, केयर नहीं करते इतनी, तो लेंस जो है वो कहते हैं कि पीछे पास हो जाता है, तो वो किस तरह? कॉन्टैक्ट लेंस पीछे पास नहीं होता, लेंस ये होता है कि लेंस कैन बी ब्रोकन इनटू द आई, ये हो सकता ठीक है। यूजुअली स्पोर्ट्समैन जो लड़के हैं वो एंड फीमेल्स हु यूज फॉर कॉस्मेटिक रीजंस और अदर, इट कैन ब्रेक इनटू द आई, इट कैन कॉज वेरी माइल्ड problems like conjunctivitis or allergic reaction to severe problems like corneal ulcer. And corneal ulcer in contact lenses is usually because of acanthamoeba, which occurs, acanthamoeba develops in humid environment. So in contact lens wearers, it is very common and it is very hard to treat. It is visual threatening and it is also common in swimmers, because if they swim with contact lenses, then in swimming pools the acanthamoeba grows very well, and in contact lens wearers, the bottle of the fluid, that is a very good media for the cultivation of acanthamoeba. So a very careful approach should be taken. I always personally discourage the use of contact lenses, especially cosmetic. And if someone is using for visual rehabilitation to avoid the glasses, then I usually recommend to go for refractive surgery once and for all. It is safest approach, refractive surgery, and you don't need contact lenses for daily wear for restoring the vision and not getting rid of the glasses. Okay? Thank you very much.